ایک سروے کیا گیا پلس کنسلٹنٹس کی طرف سے جس کے اندر 68% پاکستانیز اپنے اخراجات کو کٹ کرنے پہ ان کو کم کرنے پہ مجبور ہیں، اور اس کی انہوں نے مختلف چیزیں دیکھیں. یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی جو باہر آؤٹنگز ہوا کرتی تھی، باہر لوگ کھانے پینے کے لیے ڈنرز کے لیے چلے جاتے تھے، 23% لوگوں نے اس میں کٹوتی کی ہے. اس کے علاوہ 14% ایسے لوگ ہیں جو بالکل ہی آؤٹنگز پہ جانا انہوں نے بند کر دیا ہے. اس کے علاوہ 2% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت کو دیکھ کر اپنا پیٹرول بچانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں. پرسنل کیئر، خواتین کے بارے میں اکثر یہ الزام لگتا تھا کہ جی وہ جاتی ہیں اور سیلونز میں گھنٹوں بیٹھی رہتی ہیں، بہت پیسے خرچ کرتی ہیں. 4% خواتین نے پرسنل کیئر میں بھی کٹس لگائے ہیں اور 2% مرد حضرات نے بھی کٹس لگائے ہیں اس کے اوپر. اس کے علاوہ جی آپ کو بتاتے رہیں گوشت، مرغی وغیرہ، اس کے علاوہ دودھ، فروٹس جو یہ ڈیلی کنزمپشن کی چیزیں ہیں، 15% رسپونڈنٹس نے اس کو بھی خریدنے میں کمی کی ہے کیونکہ افورڈیبلٹی کے مسائل ہیں. 21% لوگوں نے اپنے گروسری آئٹمز جو گھر کی وہ شاپنگ کرتے ہیں اس میں کٹس لگائے. جو پہلے ہم کہتے ہیں نا فیل گڈ فیکٹر، فلانی چٹنی بھی اٹھا لو، یہ اسنیک بھی اٹھا لو، وہ بھی لوگوں نے کم کیا ہے. دس از جسٹ ون سروے. لیکن اس سروے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں، اس میں تقریباً 1800 پلس لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور یہ پاکستان کے 17 بڑے شہروں میں کنڈکٹ کی گئی. تو آج کے دور میں سب کے لیے سب سے بڑا نشان کہ پیسے کیسے بچائے جائیں، پیسوں کو کیسے ملٹیپلائی کیا جائے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، فائنینشیل سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور ہمارے پاس زبردست لوگ موجود ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی مائی ویری ڈیئر فرینڈ عدیل اظہر از ہیئر who we know as a prominent RJ and media personality in Pakistan. You see him doing a number of podcasts, لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آرگنائزیشنل اینڈ پرسنل ویلتھ مینجمنٹ میں بھی ایڈوائز کرتے ہیں لوگوں کو. بہت شکریہ عدیل فار بینگ ہیئر. تو آج ذرا 2 کا 4، 4 کا 8 کیسے کرتے ہیں آپ سے پوچھیں گے. فنگرز کراس. اس کے علاوہ جی علمہ رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. نفسیات کا بڑا تعلق ہوتا ہے. آپ جیسے لوگوں نے کہا 10 روپے کی چیز خریدی تھی، 80 روپے تک اس کی قیمت گئی، لیکن جب میں بیچنے گیا تو 50 روپے میں بکی. تو جو پرسیپچول لاس ہے نا، اس سے انسان کبھی نہیں نکل پاتا اور یہ نفسیاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں گے کہ گریڈ کہاں کہاں آپ کو مزید نقصان کرا دیتی ہے، کہاں اگر پیسے کم ہو تو آپ کو اپنی لی ہوئی خریدنے والی قیمت یاد نہیں رہتی، اس وقت بکنے والی قیمت سے ہی آپ دل پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ذرا ان موضوعات پہ بھی بات کرنی بہت ضروری ہے. تھینک یو علما فار بینگ ہیئر. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ فریال شاہد خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک لائف کوچ ہیں. اور آج کل لوگ کہتے ہیں 2 ہی درد دل ہیں، نمبر 1 پیسے کم ہیں، دوسرا کہ کوئی ریلیشن شپ میں نہیں ہے. تو پہلے والا دکھ جو بڑا دکھ ہے آج کل کا، اس کو ذرا ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. عدیل آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ کنورسیشن جو ہم پہلے کر رہے تھے. A lot of Gen Zers are interested in crypto. And whereas جب ہم بڑے ہو رہے تھے اور اب 20s کے ایج بریکٹ میں تھے، کوئی اس وقت ہمیں اسٹاک کا کہتا تھا تو a lot of us were very scared. But now you also would recommend stock as people's portfolio. What has changed? اس وقت پیسے کہاں بن رہے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو Gen Z کی آپ نے بات کی نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے نا یہ، بیکاز اگر آپ سیاسی طور سے بھی دیکھ لیں تو ہمارے یہاں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جین زی کیسے بیہیو کرتا ہے. بنگلہ دیش کی پوری انہوں نے اٹھا کے ڈکٹیٹر کو پھینک دیا باہر ایک جنریشن نے نا. ان کی یہی بے چینی، ان کی یہی جلدی، ان کی شاید یہی جو پرسنالٹی ٹریٹ ہے وہ ان کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی میں بھی نظر آتا ہے. سو میں جب اکثر نوجوانوں کے ساتھ جا کے پرسنل فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں، میں بچوں کو سبز باغ دکھاتا ہوں. تھنک اباؤٹ 10 years down the road, 20 years down the road. Here and now. Do you really want, guys, do you really want to work till you are 60? You wish to retire at 45. وہ کہتا ہے I am 22 right now. I mean, I don't want to work till 45 even. مجھے تو انکل کوئی 25 فوراً ریٹائر کرو. تو this is where crypto comes in. Now crypto, yes, I think it's a good investment tool. لوگوں کے پاس آ گیا ایک، اسے ایسٹ کلاس کہتے ہیں. ٹول is a wrong word for that. اس میں کچھ بڑی سکسیس سٹوریز ہیں. میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں. He's based in London right now. He's that hardcore crypto millionaire. Now he retired at the age 38, 39. جہاں پاکستان ٹیم کھیلتی ہے وہ جا کے بزنس کلاس ٹریول کر کے دیکھتا ہے. And I'm very happy for him that he has done something great because he got into crypto جس وقت کرپٹو کچھ $100 کا ہوا کرتا تھا اور پھر وہ کرپٹو $70,000 $73,000 کا living on the edge ہے نا ہمارے
اب ایگزیکٹلی وہ بھی اس نے بھی بڑا گیم آن کی ویسے اس بندے نے جو بھی تھا آئی مین نیگیٹو پازیٹیو شیئر. یعنی یہ جو آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا کہ بہت سارے یوٹیوبرز پوڈ کاسٹرز بتا رہے ہیں غریبوں پیسے بناؤ, وہ اس نے بیچارے نے بہت پہلے شروع کر دیا تھا. آئی ہیو میرے کچھ اس سے ہیں اختلافات ہو سکتے ہیں میرے, لیکن کم از کم یہ ہوا کہ بچوں کو ایک اپرچونٹی ضرور اس نے دکھائی. بیکاز سدرا ہماری جو جنریشن تھی نا, بلکہ ہماری بعد والی جنریشن میں بولوں گا, ہم سے پہلے کا تو بہت برا حال تھا. کیوں؟ جہاں 4 پیسے آئے پلاٹ لے کے ڈال دو, پلاٹ لے کے ڈال دو. آج ذرا لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے 5 سال پہلے یہ پلاٹ لے کے ڈال دو انہوں نے کیا تھا, کہ اس وقت ان کے پلاٹس کی پوزیشن کیا ہے, بک ہی نہیں رہا ہے, وہ نکل ہی نہیں سکتے ہیں. اور سوچنے میں ایسا لگ رہا ہے کروڑوں کا پلاٹ رکھا ہوا ہے. اینڈ سدرا آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی پبلک سروس اور اینی تھنگ, لیکن میں نے اپنے خود کچھ دوستوں کے جب حالات دیکھے, کووڈ واز اے بگ آئی اوپنر فار می. ا لاٹ آف مائی فرینڈس لاسٹ دیئر جاب, میرے بہت سارے کولیگس کی نوکری چلی گئی. 3 یا 4 مہینے بعد ان کے پاس اتنی بھی سیونگز نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کے اسکول کی فی پے کر سکتے ہیں. تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار جو میں نے 2007 سے می اینڈ مائی وائف وی ہیو بین سیونگ آر منی, وی ہیو بین انویسٹنگ آر منی, وائی ڈونٹ آئی اسٹارٹ ٹیلنگ پیپل اباؤٹ واٹ وی ڈیڈ. اینڈ الحمدللہ میں اپنے ریڈیو شو میں, اپنے یوٹیوب شو میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, لوگ پتہ نہیں کچھ سمجھ کے مجھے کم بیک ٹو می. اینڈ پاسٹ ایئر اینڈ ہاف ہیز بین ویری ریوارڈنگ, اسپیشلی جب لوگوں کے شکریہ کے میسج آتے ہیں کہ عدیل بھائی آپ نے ہمیں پلاٹ لینے سے روک دیا, ہم نے یہاں انویسٹ کیا, ہمیں یہ ڈیویڈنڈ ملا ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہمارا پیسہ اس طرح پیسے بنائے گا. لیکن ہمارے یہاں اکثر لوگوں کا جو آؤٹ لک ہے نا وہ یہی ہے کہ جب تک تیرے پیر چلیں گے ان کی سانسیں چلیں گی. یعنی آپ اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک آپ کے اندر سے سارا جوس ختم ہو چکا ہوتا ہے. آپ کی طرف آنا چاہوں گی فریال, مجھے بتاؤ کہ لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے, جو ابھی ہم ذرا دوسری سائڈ پہ بات کرتے ہیں نا, انویسٹ تو بعد میں کریں گے, کریٹ بعد میں کریں گے, جو لوگ ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ یار ابھی تو سیلری آ رہی تھی اور اب سیلری میں وہ چیزیں نہیں آ رہی جو ہمیں جس کی عادت تھی, کیا کریں وہ لوگ, اینڈ ہاؤ مچ ڈسٹریس از اٹ کازنگ دیم؟ دیکھیے بیسکلی ہو یہی رہا ہے بیکاز آف دا اکانومی کراش, اور جو آپ کی سیلری کا سلیبس جو خراب ہو رہے ہیں, ٹیکسیشن بہت ہائی ہو چکی ہے, سو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو آبویسلی وہ نیچرلی افیکٹ کرے گی آپ کے لائف سٹائلس کو. تو آپ کو ہوگا یہی کہ وہ جو پاورٹی لائن کے نیچے لوگ ہیں وہ لائن اور جو ہے نا اپنا چنک زیادہ لے رہی ہے نیچرلی. سو اس میں اب یہی ہے کہ دیکھیں ادروائز تو یہی رول فالو ہوتا ہے فار سیونگس کی. اگر بات کی جائے تو سیونگس کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جی 50% آر یور نیڈس اینڈ 30% آر یور وانٹس, اینڈ دین ریمیننگ 20% کین بی یور سیونگس. دس از دا یونیورسل ایک فارمولا یوز کیا جاتا ہے فار دا سیونگ پرپزز. لیکن آج وہی آپ نے جیسے بات کی کہ جو نیڈس لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی ہیں تو انہیں کیسے پورا کیا جائے, اس کا ایک ہی حل ہے کہ دیکھیں ملٹیپل جو اسٹریمز ہیں اور جو سورسز آف انکم ہیں دیٹ از ریکوائرڈ بیسکلی. اچھا, اس کو میں علما آپ کے پاس لے کے جانا چاہوں گی. دیر آر 2 سیٹس آف مائنڈ سیٹس. ایک ہے ابنڈنس, جس کو لگتا ہے کہ دنیا میں اپرچونیٹیز ہی اپرچونیٹیز ہے, ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی کھل جائیں گے. دوسری طرف دے آر پیپل جو کہ ویل ٹو ڈو بھی ہوں گے, اچھی تنخواہ بھی لے رہے ہیں, ان کے پاس ملٹیپل ہو سکتا ہے سورسز آف انکم, وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں, بٹ دے آپریٹ فرام اے اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ. ان دونوں پرسنالٹیز میں کیا فرق ہے؟ اوکے, سو یس دیر آر 2 kinds آف پیپل. جیسے آپ نے بات کی کہ ایک بہت زیادہ امپلسو اسپینڈرز ہے, دے آر اوور اسپینڈنگ دیئر منی, اینڈ دوز ہو آر ہیونگ نو مائنڈ سیٹ آف سیونگ. تو یہ اب جو کرائٹیریا اس لیے انکریز ہو گیا بیکاز آف آل دی انفلیشن اینڈ ایوری تھنگ, کیونکہ اب لوگوں کے پاس سیونگس کے جو ذرائع وہ کم ہو گئے. سو دے آر ناٹ ایبل ٹو سیو انف منی in order to process. نہیں, میں جو بات کرنا چاہی تھی نا علما, کئی لوگوں کے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں لیکن ذہنی غربت ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پیسے ہیں بھی لیکن نہیں ہے, یا ہر وقت یہ خوف ہے کہ یہ پیسے چھن جائیں گے, بینک بیلنس ختم ہو جائے گا, میں روڈ پہ آ جاؤں گا, تو کنجوسی آ گئی ہے. اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ پیسے بنا پاتا ہے؟ ہاں, ایک تو طرح سے ایک فوبیا ہے نا ان کی کہ کبھی ہم ڈاؤن فال میں چلے جائیں گے, سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ان ٹو دیٹ اسٹیج, سو دے کیپ دیئر ایسیٹس اپ ٹو ڈیٹ. یعنی وہ کرنٹ کے ساتھ ساتھ ایکٹیو اینڈ پیسو انکم دونوں جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایک سیفٹی سیکورٹی دے رہے ہیں, بٹ دوز ہو آر ناٹ ایبل ٹو جنریٹ دیٹ انکم وہ پھر نہیں کر پاتے ہیں. بالکل صحیح. عدیل آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی, پوری دنیا میں یہ اصطلاح بہت یوز کی جاتی ہے, پاکستان میں کیا آپ کے پاس پیسو انکم کے لیے بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے, یا آپ چھوٹے سرمایے کے ساتھ بھی پیسو انکمز جنریٹ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے تو پاکستان میں پیسو انکم جنریٹ کرنا زیادہ آسان کام ہے. آئی پرسنلی فیل, آئی نو عجیب سی بات لگ رہی ہے اس وقت بولتے ہوئے کہ انٹرنیٹ سپیڈ اس وقت سلو ہے, تو مجھے پتہ ہے بہت سارے فری لانسرز آر سفرنگ اینڈ دا سوشل میڈیا از فل آف دیٹ, بٹ لائف کوچنگ, ہمارے پاس یہاں لائف کوچ بیٹھی ہوئے, سو ہاؤ مینی لائف کوچز آئی نو جو کہ باہر کے کلائنٹس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. آئی مین
NLP का कोर्स किया and there are 3-4 certifications that you इसमें get. तो मुझे एक्टिवली काम करना है ना, बाय पैसिव इनकम आई मीन कि मैं दुकान लेके डाल दूं या रेंट पे दे दूं और मुझे आता रहे। पैसिव इनकम का है। आप देखिए ना, देखें सबसे पहले तो you need to start with something ना, आपको करना क्या है, कैपिटल तो चाहिए। अच्छा अगर आपके पास कैपिटल भी नहीं है फिर तो जस्ट गो एंड लर्न सम स्किल्स, उसमें आपका टाइम लगेगा। हाउएवर जो आपने कहा कि जी एक गरीब माइंडसेट है, पैसे लोगों के पास रखे हुए हैं बट वो इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, आई थिंक हमें अपना खौफ ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं प्लीज़ यहाँ प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा या मैं कोई सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को जरा 2 मिनट के लिए पॉज लगाएं, बल्कि इस पे वापस आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं कि ये जो हर एक को बस घर लेना है, गाड़ी लेनी है, लेकिन फिर उस गाड़ी में डालने के पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे या उसको चार्ज करने के लिए आपके पास बिजली नहीं होगी, तब क्या करेंगे आप? अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं किस तरह आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। घर जिनका बनाने का ख्वाब है, एक वो कहते हैं ना, वो एक बचपन से आपकी जो ड्रीम होती है, एक छोटा सा घर होगा, उस पर एक पोर्च होगा, पोर्च पे एक गाड़ी होगी, 2 बच्चे होंगे, सो शुड यू गिव अप ऑन दैट? इफ़ यू वांट दैट, उसको करना का जो तरीका है वो फ़र्क होना चाहिए। इल्मा आपसे पूछना चाहूँगी, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट इज़ देयर रिलेशनशिप विद मनी? यानी कई लोग कहते हैं ना, जो अगर आपकी अपब्रिंगिंग मिडिल क्लास से है तो समहाउ पीपल अ लॉट ऑफ टाइम्स फील कि यार हम इसमें स्टक होके रह गए। जो अमीर हैं वो मज़ीद अमीर होते हैं, जो गरीब है बेचारा वो भी स्वैप करके ऊपर अपने आप को बेहतर कर लेता है, लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम पीपल इन द मिडिल क्लास फील वी आर स्टक, वी आर कर्स्ड टू बी इन दिस क्लास। Which is very true. Why? Because middle class are actually trying to fulfill their basic needs and they're not able to cross that barrier. जब वो basic needs ही fulfill नहीं हो रही, वो savings नहीं कर पाते। Courage नहीं होती invest करने की, सिर्फ saving ही खेलते रहते हैं, इसलिए होता है ये। Encouragement की बात तो एक अलग आती है, लेकिन external factors भी होते हैं, क्योंकि inflation है, उनकी salary ही इतनी नहीं है जितने उनके expenses बढ़ चुके हैं। So वो उस चीज़ को आगे जो luxuries की तरफ जो लाइफ जाती है, वो lifestyle को अपने उस तरह से बेहतर नहीं करता। that a little more. देखें, अगर आप किसी भी एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स से बात करेंगे, उससे मिडिल क्लास की तनख्वाह ज़्यादा है, लेकिन जब हम कहते हैं ना ख़र्चे ही पूरे नहीं हो रहे, इसके अंदर आपका जो एक एस्पायर्ड लाइफस्टाइल है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी अगर आपके पास 4 पैसे होंगे, आपका दिल चाहेगा कि आप किसी बड़े स्टोर से शॉपिंग करें, आप फ़लाना ब्रांड पहनें, तो आप यकीनन एक हैंड टू माउथ सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन क्या मिडिल क्लास इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है? इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, बिकॉज नाउ दे आर कंसर्न्ड, इट इज़ अबाउट देयर सर्वाइवल। एक कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं आसिफा ताका बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है मैम आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अदील को देख के बहुत अच्छा लगा, आपका प्रोग्राम तो मैं रेगुलर देखती हूँ। शुक्रिया। आज का भी टॉपिक एज यूजुअल, आप हर दिन आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी मुझे आज के हवाले से बात करनी है। आजकल के जो हालात चल रहे हैं कि जिसकी जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चे हैं। वो किसी तरह से भी, वो अगर उसके घर में कुछ मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें दे रहा है, या घर का आप किचन का खर्चा देख लें, इतना बढ़ गया है। तो अब तो जैसे घर बनाने का जो ख्वाब है वो तो ख्वाब ही मुझे लगता है होगा कि हमने तो अपना घर, हमारे पास तो है, हमारे बच्चे शायद ना बना पाए अपना घर, वो गिव अप भी कर चुके हैं मैम। जेन ज़ी तो कहती है हमें घर बनाना ही नहीं है, घर बनाना है। और प्लस हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो मुझे महसूस होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारी बढ़ती हुई आबादी है, जो कि कंट्रोल से बाहर है। एक घर में 10 से 15 लोग खाने वाले हैं, तो गुजारा खर्चा कैसे होगा? इस चीज को हम कभी भी एड्रेस नहीं करते, अपनी बढ़ती हुई आबादी को। दिस इज अब पाकिस्तान के लिए हम अपने रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे? जो लैंड थी उन पे तो हमने आबादियाँ बना दी। हम ज़रई ज़मीनी मुल्क है हमारा, लेकिन हमारे पास बड़ी बड़ी आबादियाँ बन गई, फार्म कट गए, फलों के कट गए, फूलों के कट गए, सब कुछ कट गया और घर बन गए। तो रिहायशी स्कीमों में बस सिर्फ लोग ही बस रहे हैं और लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो बस मुझे आपका प्रोग्राम में सिर्फ यही बात करनी थी। बहुत शुक्रिया। आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट थॉट, और ख़ास तौर पे जब हम सरमायाकारी की बात करते हैं तो अपने आने वाले कल मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करने का एक तरीका ये भी है कि कुछ दरख्त, कुछ पौधे ज़रूर लगाएं और उसकी निगहदाश्त करें, बिकॉज दी सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स यू हैव टू नॉट गेन फ्रॉम, यानी आपको ये उसके साए में बैठने की, उसका फल खाने की तवक्को नहीं करनी चाहिए। ये वो चीज़ है जो आप
दूसरों के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. कमिंग बैक टू यू फरियाद, मुझे बताइए कि व्हाट अबाउट वुमेन, ख़वातीन को अगर आप नोटिस करती हैं, अगर हम इस बात को मानने के लॉट ऑफ देम आर नॉट करियर ओरिएंटेड, एम्बिशियस नहीं है, लेकिन अच्छा लाइफस्टाइल चाहती हैं, तो क्या उनका सारा का सारा इन्हिसार एक मालदार शख्स से या एक स्टैब्लिश शख्स से शादी करने के ऊपर ही है? उनका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? देखिए, एक तो हमारा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट तो जैसे आपने कहा वो तो है ही, लेकिन आई वेरी मच बिलीव इन दैट कि आपको पैरासाइटिक लाइफ नहीं गुजारनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि होम मेकर्स जो हैं दे वेस्टिंग देयर टाइम, बट आपको कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने माइंड को प्रोडक्टिव तरफ ज़रूर लेके जाना चाहिए. कोई ना कोई हुनर आई एम श्योर किसी ना किसी के अंदर ज़रूर होता है. यू नो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में कोई हुनर ही ना हो. आई एम श्योर आप अपनी किसी एक चीज़ को थोड़ा बहुत पॉलिश करके उसको किसी स्ट्रीम पे लेके जा सकते हैं और उसको अपस्किल कर सकते हैं. एंड यू नेवर नो कि आपके लिए आपका डेस्टिनी क्या वेट करे. अदील, सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस फॉर दोज हु आर बिटवीन जॉब्स. देखें, इस वक्त रिडंडेंसी और बेरोज़गारी पाकिस्तान में उरूज पर है, तो हमारी बातें मुझे लगता है कई ऐसे दिलों को दुखा भी रहे होंगे जो कहेंगे भाई जो तनख्वाह आ रही थी अभी तो वो भी नहीं आ रही है, तो वो क्या करें, वो कैसे वेल्थ क्रिएट करें, अपने आप को कैसे अप्लाई करें? सम वर्ड्स ऑफ encouragement for them. I think सबसे पहले तो ये कि learn some skill, guys, some hard skill, कोई ऐसी चीज़ जिसको जो सिर्फ आप कर सकते हैं, सिर्फ आप भी कर सकते हो, कोई चीज़ आपको आ जाए. सी इवन जो बहुत सारे BBAs एंड MBAs निकलते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, आप डॉक्टर होते हैं, आप इंजीनियर होते हैं, यू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल. जो MBA आता है ना, वो कोई स्किल नहीं सीखता, उसको सिर्फ बातें करनी आती हैं. इट्स अ स्किल. कैन यू मोनेटाइज दैट? डू यू हैव एनी पैशन इन लाइफ? क्या कोई चीज़ है, स्टिचिंग हो, कुकिंग करना हो, जो भी हो, कैन यू मोनेटाइज दैट? आई रियली डोंट थिंक ऐसे पैशन का कोई फ़ायदा नहीं जिस पे पैसे ना कमा सको. यार मैं तो अपनी लाइफ के बारे में बोलता ही हूँ सिद्रा, मैं तो मुझे पैशन है बोलने का, ठीक है जी, और मैं उसी पे पैसे कमा रहा हूँ, मेरी लाइफ उसी में ही चल रही है. आई थिंक आई शुड गेट माई वॉइस इंश्योर्ड एज वेल. ये नहीं होगी तो मेरे लिए बड़ा मसला हो. वोकल कॉर्ड्स ये होती है इंश्योरेंस दुनिया भर में, बट गाइज आई मीन सीरियसली, इफ यू फील यू आर स्टक, ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है सीखने को. देयर इज सो मच फ्री रिसोर्स अवेलेबल. जस्ट गो टू यूट्यूब, थिंक अबाउट समथिंग दैट यू वांट टू डू. I'm going to pick on the first part of what you said. इसमें देखें, एज की कोई कैद नहीं है. मैं तमाम ख़वातीन, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद मुझे पता है ख़वातीन की मेरा शो देखती है, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है. देखें, आपके पास ऐसे हुनर हैं जो इस वक्त दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं. आपको कुरेशे करना आता है, आपको एम्ब्रॉयडरी करनी आती है, आपको खाना पकाना आता है, कई ऐसी चटनियाँ आती हैं, कई ऐसे ख़ास गुर वाली चीज़ें आती हैं जो अब कोई नहीं बनाता. प्लीज़ इस ख़जाने को अपने साथ अपने दिल में दफन ना रखें, उसको दुनिया में लेके आएँ. मोनेटाइज इट. आप छोटे से शुरुआत कीजिए एंड लुक एट इट. मैं हैरान रह गई थी, कल परसों दोबारा एक दफ़ा ये केस स्टडी सामने आई कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप डब्बा डिलीवरी होती है बॉम्बे सिटी में, सुबह के वक्त 10 लाख डब्बे डिलीवर होते हैं और घरों में बनते हैं. एक सिंपल चीज़ शुरुआत कीजिए, मोनेटाइज योरसेल्फ. इस वक्त कंप्लेन करने का वक्त नहीं है, इस वक्त काम करने का वक्त है. हमारे साथ अदील मौजूद थे, इल्मा एंड फरियाद. थैंक यू वेरी मच गाइज, यू गॉट सम ग्रेट टिप्स और आई थिंक एनर्जाइज हो गए होंगे लोग. कल वैसे भी छुट्टी मनाकर आए हैं, आज़ादी आपने मना ली है, अब ज़रा इस आज़ादी को काम में लेके आएँ और काम करें, पैसे कमाएं अपने लिए भी और उसको सेव करें, इन्वेस्ट करें. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर फ्यूचर. अच्छा जी, पैसे बनाए कैसे जाएँ और पैसे जो डूब गए हैं उनको भूल जाएँ, वो एक एक्सपीरियंस था या क्या था? मिसाल के तौर पर आप अक्सर लोगों को अपने दादा या अपने पेरेंट्स से ये बात करते हुए सुनेंगे, पता है ये घर किसी भी जगह से गुजर होता है, ये उस ज़माने में 1 लाख रुपए का था, आज ले लेते 2 करोड़ की प्रॉपर्टी होती. भाईजान, आप उस वक्त भी गरीब थे, आपके पास उस वक्त भी 1 लाख रुपए नहीं थे. सो हाउ डू यू मेक श्योर कि इस वक्त जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें? अदील, जस्ट टू कंटिन्यू विद व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, यार उस वक्त भी 25,000 नहीं थे, आज 2 करोड़ नहीं है, तो लोग कहते हैं शुरुआत कहाँ से करें? हमारी इन्वेस्टमेंट में हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड सिप. इसको बाज़ लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान. सिस्टमैटिक थोड़ा मुश्किल वर्ड हो जाता है. सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है? इवन इफ यू आर मेकिंग 50,000 रुपीज़ अ मंथ, जैसे वो कह रही थी जी 20% रूल. बाय द वे, आई अप्लाई द 20% रूल. सो व्हाटएवर इनकम आई हैव, आई सेव 20%. और पहले सबसे पहले ये नहीं कि आखिर में बचे. आई हैव गॉट माय 13 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसका पॉइंट नंबर 1 इज सेविंग शुड बी योर फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ द मंथ. सबसे पहला, क्योंकि अगर आप इंतजार करेंगे बाकी पैसे बच जाएंगे, पैसे नहीं बचते, पैसे नहीं बचते. हमारी आदतें बहुत स्टबर्न है. हम जो है ना वो उन 2019 या 18 की प्राइसेस पे ऑपरेट कर रहे हैं. सोच में तो अमीर है ना, सोच में अमीर है और उस चक्कर में बैंक बैलेंस लोगों का खत्म हो रहा है बिकॉज़ वी आर नॉट एडजस्टिंग आवर लाइफस्टाइल. सो सेविंग शुड बी योर फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ द मंथ. हर महीने
कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहें। मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मेक अ पोर्टफोलियो, मेक क्रिप्टो 5% ऑफ योर टोटल। अच्छा, व्हाट आर योर फेवरेट इन इन्वेस्टमेंट्स? क्या करें? लोग कहते हैं अच्छा इसमें बड़ी आपस में नेक टू नेक चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी इंश्योरेंस कर लें, कुछ लोग कहते हैं कि जी आजकल म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर लें, कुछ लोग तकाफुल करना चाहते हैं। व्हाट डू यू रेकमेंड? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज आर मेजर एडवर्टाइजर्स इन टेलीविजन प्रोग्राम, तो मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, बट जनरली मैं लोगों को इंश्योरेंस रेकमेंड नहीं करता। उस पर रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं आते। उससे बहुत अच्छा पोर्टफोलियो एक आम नॉलेज वाला बंदा अपना डेवलप कर सकता है। वन, इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्शन कहाँ देता है? एसेट में। गाड़ी का खुदा ना खास्ता नुकसान हो गया, घर में आग लग गई, कोई इस तरह के मसला, मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, अब तो हर एक की इंश्योरेंस आती है। मैं लोगों को एडवाइस ये करता हूँ जो बिल्कुल कदम रख रहे हैं इसमें, कि आप जाके म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट खुलवाएं, हर महीने 5,000 10,000 आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। कंपाउंडिंग एक कॉन्सेप्ट है, एंड कंपाउंडिंग इज कॉल्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यानी आपको नहीं पता होता कि 20 साल बाद आपका वो जो कंपाउंडेड अमाउंट है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हम पाकिस्तानियों को बैंक्स के बड़े अच्छे रेट्स मिलते हैं। आप म्यूचुअल फंड के पास जाएं, वो आपका पैसा, उनके मनी मार्केट फंड्स होते हैं, इनकम फंड्स होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। आई एम नॉट सेइंग कि 20 साल तक यही काम करते रहें। उसके बाद मूव टू इक्विटीज़। इक्विटीज़ मतलब स्टॉक मार्केट में आप आइए, आप स्टॉक मार्केट वाले फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। जब आप उसमें अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप अपना स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करें। सो देयर आर सम 25-30 ब्यूटीफुल कंपनीज इन पाकिस्तान। हमें हर चीज़ बड़ी नेगेटिव नज़र आ रही है। नो, कुछ कंपनियां इन हालात में भी बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रही हैं। और सिदरा, इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी हर क्वार्टर, आधे साल, एक साल बाद डिविडेंड की फॉर्म में आपके साथ शेयर भी कर रही होती हैं। तो हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट से स्टार्ट करें। कतरा कतरा समंदर बनता है इन्वेस्टमेंट में। दिस सम्स अप द एंटायर गेम। अच्छा, एंड आल्सो आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक्स वी मेक इज कि हम 40-45 की उम्र के बाद सेविंग्स और वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचते हैं। इंटरनेशनली अगर आप देखें, चाहे वो इंश्योरेंस हो या सेविंग्स हो या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो, बच्चे 20 साल की उम्र से शुरू कर चुके होते हैं या उनको एटलीस्ट नॉलेज होती है। व्हाट वुड यू से फरियाल, आपके पास जितने क्लाइंट्स आते हैं जो जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स देख चुके हैं, पैसे बनाकर खो चुके हैं, अनकॉन्शियस बिहेवियर्स भी हैं, आर दे इन्वेस्टिंग, आर दे सेविंग? क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सेविंग्स जो हैं वो एक हमेशा बैक बर्नर पर चलने वाली चीज़ ही रह रही है, क्योंकि शॉपिंग स्प्री है, लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, काम कम से कम करना है, पैसे ज़्यादा चाहिए, ना किए हुए भी। तो ये बात है, दिस इज़ अ डिलेमा हेयर। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अनफॉर्चुनेटली इतनी लोगों को समझ नहीं आ रही है कि अभी क्या करें, बिकॉज जो काम करने जाते हैं वो उनको अपेरेंटली लगता है कि यार इसमें तो ये नहीं चल रहा है। लेकिन दुनिया भर में लग्जरी ब्रांड्स इस वक्त, ज़रा सी ख़वातीन की अगर बात की जाए, लग्जरी ब्रांड्स हो गए हैं, लाइक जो मेन स्ट्रीम लग्जरी ब्रांड्स थे, दे आर फाइंडिंग नो बायर्स। अभी भी आप LV, गुची के कुछ जो कलेक्शंस हैं वो आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। कई दफ़ा आपने भी वो रील्स देखी होंगी कि स्टॉक्स में एक्सचेंज इन्वेस्ट करने के बजाय एक अच्छा सा बैग ले लें, उसकी रीसेल बड़ी ज़बरदस्त होती है। बट व्हाट आर यू नोटिसिंग अराउंड यू? नहीं, वो आई नोटिस द सेम। देखें, बात यही है कि कुछ तो रीसेल की अगर आप बात करते हैं तो अव्वल तो बात ये है कि उसमें वो मार्केट है हमारे पास जो प्रीव्लव मार्केट है, और स्पेशली उस तरह के बिग नेम्स जो लग्जरी ब्रांड जिनको हम कहते हैं, उसकी नीश बहुत ही छोटी सी है हमारे पास। देयर ओनली फ्यू पीपल जो इस पे कर रहे हैं काम। ठीक है, कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन दे हैव ऑल्सो सिग्निफिकेंटली गॉन डाउन। लोगों की बाइंग पावर इन पाकिस्तान क्या ग्लोबली नीचे हुई है, एंड दैट्स फॉर श्योर, दैट्स अ फैक्ट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखिए, पहले शादियों में लोग कहते थे कि जितना ठीक है आपने भी सोने का सेट देना है, उन्होंने भी सोने का सेट लेना है। अब सोना हो गया इतना महंगा कि वो सोने का सेट बहुत छोटा हो गया। सो सडनली पीपल आर बाइंग आइदर सिल्वर ज्वेलरी विच इज़ गोल्ड प्लेटेड, या आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आप वो फिनेस देखिए कि आपको दूर से लगेगा कि किसी ने सोना पहना हुआ है। नॉट काउंटिंग दी अंबानीज इन इट, जो कि कैजुअली एक मुल्क का GDP पहन के घूम रहे होते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिदरा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, क्या समझते हैं आप, सेविंग्स हो रही हैं आजकल? कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, या बस जी खर्चे ही पूरे हो जाएं तो गनीमत है? नहीं, वो खर्चों से तो लोग वाकई बहुत परेशान है, लेकिन देखें हम इसके पीछे बड़ा एक बैकग्राउंड है। मैं पिछले दिनों प्रोग्राम देख रहा था कि स्विट्जरलैंड एक ऐसी नेशन है कि जहाँ शायद 0% बैगर्स हैं। हाँ। वहाँ माँ बेटी भी एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं। वो कहती है तुम बैंक से ले रहे हो, मुझसे ये कम रेशियो पे ले लो, बिजनेस करो, मुझे पार्टनर बनाओ। क्या बात? वहाँ ये सोच है। हाँ। अच्छा, इसके बाद ये बड़ी अच्छी बात लगती है, लेकिन इसमें पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग
हम लोग जैसे किसी से काम करते हैं या कोई हम पे एतमाद करता है, हम फौरन उसको धोखा देने की कोशिश करते हैं। वो इशफाक साहब कहते हैं कि धोखा ऐसा वफादार होता है, ये पलट के वो आपके पास आता है लाल। क्या बात है। ये जो बद एतमादी है ना, ये अगर हम खत्म कर लें तो हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, हम खुशहाल अच्छा, भी ये होंगे। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, थैंक यू सो मच राशिद। आज के प्रोग्राम का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप उजलत में एकदम सोचें कि यार सिद्रा ने कह दिया, अदील साहब ने कह दिया, आज ही जाके इन्वेस्टमेंट करनी है। आप प्लीज़ नाकालों से होशियार रहें और ख़ास तौर पे ज़रा बैक एंड अंडरस्टैंडिंग कर लें। नंबर 1, पाकिस्तान में आज भी लोग जिनके पास आप कमेटी डाल रहे हैं वो पैसे लेके भागने की पूरी सकत रखते हैं, 1। दूसरा फार्मूला जिसमें लोग आपको बड़े रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 10 लाख रुपए लें और हर महीने आपको 50,000 का मुनाफा मिलेगा। ये बहुत पुरानी स्कीम है। आप ही के 10 लाख में से 2 महीने या 3 महीने आपको 1.5 लाख वापस मिलते हैं और बाकी पैसे लेके लोग चंपत हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस भी हैं। ज़रा इस तरह की इन्वेस्टमेंट की हम आपको तरगीब नहीं दे रहे हैं। दूसरे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।